Good morning, dear students. We are going to continue our chapter number 10, which is light. In previous lecture, we had discussed about reflection of light and laws of reflection. After that, we had discussed about spherical mirrors and the notation of spherical mirror like pole, principal axis, focus, center of curvature, radius of curvature, and all. And after that, we had discussed rules for image formation by both type of spherical mirrors, convex as well as concave. So today we are going to start our next topic, which is image formation by concave mirror. Image formation by concave mirror. Okay, one by one we will discuss about the image formation by both type of concave as well as convex mirror. But right now we are going to draw the image formation of an object by concave mirror. We all know that if we are going to form an image of an object, then we have to place that particular object in front of mirror. Okay, so we can put our object at different locations So the very first location, if object is placed at infinity, it means our object is placed far away from concave mirror. See, this is the pole, this is focus point F, this is center of curvature C. So if our object is a distant object, or we can say our object is placed at infinity, we know infinity, it's a relative term. So the distance of an object from this particular mirror, we can say at infinity, it means the radius of curvature is too small as compared to the distance of object from this particular mirror. So yeah, whenever our object is placed at infinity, then the incident rays will be parallel to principal axis. And we know, according to the rules for image formation, if the incident rays are parallel to principal axis, then after reflection they will pass through focus. Okay, similarly, if I am going to consider this one as incident ray, then after reflection it will also pass through focus. It means आपका जो बेटा जो ऑब्जेक्ट था वो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट रखा है, तो इनफाइनाइट मतलब डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, तो उससे अगर इंसिडेंट रेज पैरेलल है तो वो कहां से पास करेगी बेटा? फोकस से। और अगर आपका ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे हो तो ऐसा लगता है कि जो रेज जो है आपकी जो इंसिडेंट रेज है वो पैरेलल है। अच्छा, वी नो एन इमेज व्हिच इज फॉर्म्ड बाय एनी मिरर is made up of an infinite number of rays, but here we are going to locate the location of an image. So we do require at least 2 reflecting rays. See, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसका इमेज जो बनता है बेटा वो इनफाइनाइट रेज से बनता है। किससे बनता है? इनफाइनाइट रेज से बनता है। लेकिन अगर हमें उस ऑब्जेक्ट का लोकेशन देना है कि किस लोकेशन पे इमेज बन रहा है, then we do require at least 2 reflecting rays. ओके, सो आपका जो ऑब्जेक्ट था वो उसका इमेज कहां बनेगा बेटा? फोकस पे। तो देखो, पहला केस जो आपका था वो था कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन में कि इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगा उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि इमेज जो बना, तो आपका जो रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं फोकस पे, तो इमेज बनेगा एट फोकस। अच्छा, तो आपका इमेज कैसा बन रहा है? तो बेटा ये इमेज जो है वो पॉइंट साइज का बन रहा है, तो मैं इसको या तो बोल सकता हूं हाईली डिमिनिश्ड या पॉइंट साइज। अच्छा, रियल में मिल रहा है। देखो, आपके जो इमेज जो हो सकता है वो लोकेशन देना है आपको, फिर आपको उसका ये देना है कि आपका उसका साइज क्या है, कि वो पॉइंट डिमिनिश्ड है, हाईली डिमिनिश्ड है, कि पॉइंट साइज है, कि सेम साइज है, कि लार्ज है, कि एक्सट्रीमली लार्ज है। ठीक है, फिर आपको देना होता है कि आपका इमेज बना कहां, कितना बना, कैसा बना। इट मींस आपको इमेज देना कि वर्चुअल है या फिर आपका रियल इमेज है। अगर रिफ्लेक्टिंग रेज रियल में इंटरसेक्ट करती है तो वो इमेज रियल होगा। अगर वो इट सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन द नेचर ऑफ इमेज विल बी इमेजनरी। और आपको ओरिएंटेशन देना है, आपको ओरिएंटेशन। तो यहां रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज क्या होगा बेटा? रियल इमेज होगा।
अच्छा, नेक्स्ट आपको ओरिएंटेशन देना है। अब सी, अगर आप बोलोगे कि सर ये मेरा कोई ऑब्जेक्ट है, सपोज करके ये मेरा ऐसा ऑब्जेक्ट है, इसका इमेज जो है वो पॉइंट साइज बन रहा है, तो मैं इसको बोल नहीं सकता कि ये इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। बेटा इरेक्ट का मतलब सीधा इमेज, इन्वर्टेड का मतलब उल्टा इमेज बनना, है ना, उल्टा ओरिएंटेशन में उल्टा। ठीक है, तो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं कि अगर ये मेरा ऑब्जेक्ट है और इसका पॉइंट साइज इमेज बना है, तो अपन वी आर नॉट सपोज टू से दिस वन पर्टिकुलर कि ये आपका इन्वर्टेड है या इरेक्ट है। बट अगर मैं थोड़ा सा इसको मूव करता हूं, ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से थोड़ा सा मूव करता हूं, तो मेरे को एक ट्रेंड मिलता है कि आपका जो इमेज होगा वो इन्वर्टेड होगा। दैट्स व्हाई वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर लोकेशन द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज इज इन्वर्टेड. Orientation of image is inverted. So if we are going to place our object at infinity in front of concave mirror, then the image will form at focus. The image will be highly diminished, or we can say point size, and the reflecting rays intersect in real. So the nature of image is real and inverted. Okay. The next case, if we move our object towards mirror, it means our object is placed between placed beyond C, placed beyond C. It means if we are going to move our object from infinity to towards C, then at any particular location we will get like this. This is the center of curvature C, focal length F, and this is principal pole P. Okay, if our object is placed beyond C, according to image formation rules for image formation, if the incident ray is parallel to principal axis, if incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it will pass through focus. And the other one is if the incident ray incidence through focus, if the incident ray incidence through focus, then after reflection it will parallel to principal axis, then after reflection it will parallel to principal axis. And we know at this particular point our both reflecting rays intersect to each other, so this will be the location of image. सी सिंपली आपको बोला गया कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो इन्फिनिटी से मूव किया मैंने टुवर्ड्स मिरर, सो द नेक्स्ट लोकेशन फॉर ऑब्जेक्ट विच इज बियॉन्ड सी. एंड वी नो in previous lecture we had discussed the rule formation of image rules for image formation by spherical mirrors. In that particular case we had discussed if the incident rays are parallel to principal axis, if the incident rays are parallel to principal axis, then after reflection they will pass through focus, or vice versa. It means if the incident rays incidence through focus, then after reflection they will pass parallel to principal axis. Okay, so here we will get the image of this particular object, image of this particular object. Okay, see if I am going to notation A B, then it will be A dash and B dash. ओके सो बात करते हैं इमेज का. तो इमेज बेटा कैसे कहां बन रहा है, तो आप बोलोगे सर इमेज जो बन रहा है वो बिटवीन एफ एंड सी बन रहा है. इमेज कहां बन रहा है बेटा, बिटवीन एफ एंड सी आपका इमेज बन रहा है. अच्छा सर इमेज की बात कर लिया, सर इमेज का साइज क्या है, तो बेटा इमेज का साइज जो है वो डिमिनिश्ड है. कैसा है, डिमिनिश्ड है. डिमिनिश्ड का मतलब होता है बेटा छोटा साइज है ना, जो आपका ऑब्जेक्ट था उसके कंपेयर में आपका इमेज कैसा है, छोटा है. अच्छा डिमिनिश्ड की बात करते हैं, तो बेटा ये रियल है. हाँ सर रियल में इंटरसेक्ट कर रही है, तो इमेज कैसा है, रियल है. और कैसा है, इन्वर्टेड है. रियल और इन्वर्टेड है ना. तो आपको ये दो केस समझ में आया. तो नेक्स्ट और अगर हम थोड़ा सा और फर्दर मूव करते हैं, सो द थर्ड केस इफ वी आर गोइंग टू मूव आवर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर, सो वी विल गेट द थर्ड लोकेशन इज एट सी. So if object is placed at C, the next case if our object is placed at C. The third case, if object is placed at C, let's see, if our object is placed at C in front of a concave mirror, suppose this one is C, center of curvature, this is focal point F, C and P. Okay, if our object is placed at C, then according to rules for image formation, if incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it will pass through focus. Then after reflection it will pass through focus. And vice versa, it means if incident ray incidence through focus, if incident ray incidence through focus, then after reflection it will pass parallel to principal axis. See, simple आपको बेटा दो रूल जो मैंने आपको बताया कि पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, फोकस से आएगी तो
पैरेलल जाएगी, है ना। तो आपको वही ध्यान में रखना है। सपोज करिए ए है तो ये बी है, तो आपका इमेज जो बनेगा वो बेटा एग्जैक्ट सी पे ही बनेगा, मतलब ये आपका बी डैश हो जाएगा और आपका ये क्या हो जाएगा पॉइंट, ये आपका ए डैश हो जाएगा। मतलब आपको सिंपली वही कि फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाएगी और पैरेलल आ रही है तो फोकस से हो जाएगी। मतलब यहाँ जो है बेटा आपका इमेज कहाँ बनेगा, तो आपका ऑब्जेक्ट अगर सी पे रखा है तो इमेज भी सेम लोकेशन पे बनता है, इमेज भी सी पे ही बनेगा, इमेज एट सी। अच्छा सर बात करते हैं इमेज सी पे बन रहा है बट इमेज कैसा है, तो सेम साइज मिलता है बेटा। अगर आप घर पे हो और आपके पास प्रोटेक्टर और स्केल वगैरह सब है तो आप यूज करना और आप ड्रॉ करना, आपको सेम साइज मिलेगा, आपको सेम साइज मिलेगा। तो सी पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो आपका साइज कैसा होता है, सेम साइज होता है। अच्छा बेटा इमेज जो है वो क्या रियल में इंटरसेक्ट कर रही है रिफ्लेक्टिंग रेज, या सर तो ये इमेज कैसा होगा, रियल होगा। और कैसा है बेटा, ये ओरिएंटेशन इसका इन्वर्टेड है ना, आपका ऑब्जेक्ट इरेक्ट था तो इमेज उसका कैसा है, इन्वर्टेड आया, ये इन्वर्टेड आया। अच्छा सर नेक्स्ट केस की बात करते हैं, तो इफ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स सी, सो द नेक्स्ट केस इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, इफ ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड बिटवीन सी एंड एफ, ओके। The fourth case, object is placed between C and F. Object is placed between C and F. ठीक सर, आपने बोला कि आपका ऑब्जेक्ट जो है वो C और F के बीच में कहीं रखा है, कुछ ऐसा कंडीशन होगा बेटा। सपोज कि ये मेरा C पॉइंट है, ये मेरा F पॉइंट है और ये मेरा पोल है कॉन्केव मिरर के केस में। अगर आपका ऑब्जेक्ट जो है C और F के बीच यहाँ कहीं रखा है तो आप फिर से वही बोलोगे कि सर इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस, देन दे विल पास थ्रू फोकस। सो ये फोकस से पास कर जाएगी। और अगर कोई फोकस से आएगी तो वो कैसे जाएगी बेटा, पैरेलल जाएगी। इट मींस अगर ये मेरी इंसिडेंट रे जो है वो फोकस से आ रही है तो ये कैसे जाएगी, पैरेलल जाएगी, ठीक है। तो रिफ्लेक्टिंग रेज कहाँ इंटरसेक्ट कर रही है, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे रिफ्लेक्टिंग रेज जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये मेरा इमेज बनेगा। अगर मान लो बेटा ये मेरा ए बी था तो ये मेरा पॉइंट क्या हो जाएगा बेटा, ए डैश और बी डैश, ये आपका इमेज बन गया। अच्छा इस बार आपका इमेज बन कहाँ रहा है, तो आपको सबसे पहले सर हमें लोकेशन देना है, तो इमेज कहाँ बन रहा है बेटा, तो आप लिखोगे सर इमेज बन रहा है इस बार बियॉन्ड सी बन रहा है, इमेज कहाँ बन रहा है, बियॉन्ड सी बन रहा है। अच्छा इमेज जो है वो कैसा बन रहा है, तो सर इस बार इमेज जो है वो एनलार्ज हो रहा है, कैसा है, एनलार्ज्ड है। एनलार्ज्ड इट मींस बड़ा बन रहा है, ऑब्जेक्ट के साइज से इमेज कैसा है, बड़ा है। इमेज जो है वो एनालाइज्ड है। अच्छा सर ओरिएंटेशन की बात करें तो ये कैसा है बेटा, रियल में इंटरसेक्ट कर रही है तो इमेज कैसा है, रियल है। और कैसा है, इन्वर्टेड है। ओके सो सिंपली बेटा आपको कॉनकेव मिरर से इमेज फॉर्मेशन करना है डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे ऑब्जेक्ट को पुट करके, और आपको बताना इमेज कहां बन रहा है, इमेज का साइज क्या है, इमेज का नेचर क्या है और इमेज का ओरिएंटेशन क्या है। ये चार चीज आपको बतानी है। आपको अगर रे डायग्राम आता है तो फर्दर वी विल कैलकुलेशन, एग्जैक्ट कैलकुलेशन ऑफ इमेज। अगर मान लो आपसे बोलूंगा कि ऑब्जेक्ट जो है वो 15 सेंटीमीटर पे रखा है, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर 30 है और आपको बताना है कि इमेज कहां, तो वो एग्जैक्ट लोकेशन का आइडिया बेटा तभी आ पाएगा जब आपको रे डायग्राम आता हो, जब आपको रे डायग्राम, अगर आपको रे डायग्राम पता है तो आप उसको क्रॉस वेरीफाई कर लोगे कि हमारा जो आंसर जो आ रहा है वो करेक्ट है या रॉन्ग है। ठीक है, नाउ इफ वी आर गोइंग टू फर्दर मूव और ऑब्जेक्ट, अगर अभी हमारा जो ऑब्जेक्ट था वो सी और एफ के बीच में था, मैंने थोड़ा सा और मूव किया तो एक सर्टेन पॉइंट क्या आ जाएगा, एफ पे। तो नेक्स्ट कंडीशन क्या हो जाएगी, इफ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस, इफ आवर ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट फोकस। अच्छा सर सिंपली है, रे डायग्राम बनाना है, फोकस पे मुझे ऑब्जेक्ट को पुट करना है। तो ये लो बेटा, मैंने ये मेरा कॉनकेव मिरर, ये मेरा बेटा फोकस, ये मेरा सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ है, तो ये मेरा फोकस है। अगर मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा बेटा, अगर मैंने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा तो सिंपली मैं बोलूंगा इफ द इंसिडेंट रेज आर पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास, देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे विल पास थ्रू फोकस। तो ये सिंपली ये पास हो गई। अच्छा सर एक तो हमारा पास हो गया, दूसरा रे के लिए हम क्या करें, या तो हम बेटा ये कर सकते हैं कि ऑब्लिकली इस पे इंसिडेंस करवा दे, इस पॉइंट पी पे अगर ऑब्लिकली आएगी तो वो सेम एंगल से चली जाएगी। अगर किसी को ये समझ में नहीं आ रहा हो तो थर्ड रूल मैंने ये बोला था बेटा, इफ द इंसिडेंट रे इंसिडेंस थ्रू सी देन आफ्टर रिफ्लेक्शन दे रिट्रेस इट्स
path, then after reflection they retrace its path. ठीक है, तो अगर ये C से अगर मैं इंसिडेंस कराता हूँ कि ऐसा it seems to be coming through C, तो अगर ये C से आएगी तो आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? C से ही जाएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन कैसे जाएगी? C से ही जाएगी। तो ये C से आई है तो कहां से जाएगी? C से जाएगी। बेटा ये दोनों जो रे जो है आप स्केल यूज करके ड्रॉ करोगे तो ये पैरेलल होती है। कैसी होती है? both reflecting rays are parallel to each other and we know parallel rays intersect each other at infinity. See, parallel lines जो है एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट करती ही नहीं। अगर हम माने कि इंटरसेक्ट कर रही है तो कहां इंटरसेक्ट करेगी? तो इन्फिनिटी पे इंटरसेक्ट करेगी। तो मतलब इमेज कहां बनेगा बेटा? इमेज जो आपका बनेगा इस बार कहां बनेगा? इन्फिनिटी पे। इमेज बनेगा इन्फिनिटी पे। अच्छा, इमेज बनेगा अगर इंटरसेक्ट करेगी तो रियल में इंटरसेक्ट करेगी तो कैसा बनेगा? रियल बनेगा, है ना। अब साइज क्या होगा? तो आप सोचोगे कि सर ये इनफाइनाइट भी जाएगी तो ये नीचे जा रही है, नीचे जा रही है तो मतलब इसका साइज जो है वो बढ़ता जाएगा, और इनफाइनाइट भी जाएगा तो इसका साइज जो हो जाएगा वो एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? एक्सट्रीमली एनलार्ज्ड। और ओरिएंटेशन कैसा होगा? इन्वर्टेड होगा। सी, देखो बेटा, जब आपका इनफाइनाइट पे ऑब्जेक्ट था तो इमेज बन रहा था फोकस पे। अगर अब फोकस पे इमेज है तो ऑब्जेक्ट बन रहा है इनफाइनाइट पे, है ना। तो उसका वाइस वर्सा है। नेक्स्ट केस, इफ वी आर गोइंग टू मूव फर्दर और ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स P or we can say towards mirror, so what will be the next location? Or next location will be between F and P, between F and P. So the next case, if our object is placed between F and P, if our object is placed between F and P and F or F and P, F and P, इट मीन्स आपका जो ऑब्जेक्ट है बेटा वो प्रिंसिपल, फोकस और पोल के बीच में कहीं रखा है। तो आपका C पॉइंट है या आपका F पॉइंट है। अगर सपोज कि आपने ऑब्जेक्ट को जो है वो यहाँ कहीं रखा है तो अकॉर्डिंग टू rules for image formation, if incident ray is parallel to principal axis, then after reflection it will pass through focus, then after reflection it will pass through focus. If incident rays incidence through C, center of curvature, अगर आपकी रे जो है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इंसिडेंस हो रही है, इट सीम्स टू बी, देखो बेटा यहां से अगर कोई रे जाएगी तो वो लगेगा कि इधर से आ रही है, ठीक है ना। तो इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर और पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर, देन इट विल रिट्रेस इट्स पाथ आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो ये रिफ्लेक्शन के बाद जो होगी वो अपने पाथ को रिट्रेस करेगी, मतलब ये वापस कहां से जाएगी? C से जाएगी। अच्छा, ये C से आ रही थी, ये C से आ रही थी तो ये C से वापस गई। तो ये कैसी है बेटा? डाइवर्जिंग रेज है। इट मींस आपकी जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो डाइवर्ज कर रही है, तो इट सीम्स टू बी कमिंग फ्रॉम अ पॉइंट बिहाइंड द मिरर। तो ये ऐसा लगेगा कि ये दोनों जो रेज है वो यहां कहीं से ओरिजिनेट हो रही है, ये दोनों रेज जो है वो यहां कहीं से ओरिजिनेट हो रही है। अगर ये यहां कहीं से ओरिजिनेट हो रही है तो इसका मतलब ये हो जाएगा बेटा, यहां आपको लगेगा कि यहां कोई ऑब्जेक्ट है जिसका आपको, ये जो ऑब्जेक्ट था उसका इमेज आपको यहां सीम होगा। इट मींस आपका अगर ये A था, ये B था, तो इस बार आपका इमेज जो बनेगा A डैश B डैश यहां कहीं बनेगा। इट मींस इमेज जो बन रहा है वो कहां बन रहा है? बिहाइंड द मिरर बन रहा है। Rest of remaining all cases that we had discussed recently, in all that cases image forms in front of mirror, whereas if our object is placed between F and P, then the image will form behind the mirror. Image will form behind the mirror. ओके, तो इस केस में आपका इमेज जो होगा वो उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं बेटा। इमेज जो होगा वो कैसा होगा? बिहाइंड द मिरर होगा या बियॉन्ड द मिरर? बियॉन्ड मिरर मतलब मिरर के पीछे इमेज बन रहा है। अच्छा, इमेज कैसा बन रहा है? तो आप बोलोगे सर एनालार्ज्ड है। कैसा है बेटा? एनालार्ज्ड है ना। बड़ा बन रहा है ना इमेज का साइज। देखो ऑब्जेक्ट का साइज इतना था तो इमेज का साइज बड़ा बन रहा है। अच्छा सर, इस बार इमेज रियल में है क्या? सी, इफ आवर रिफ्लेक्टिंग रेज, बोथ रिफ्लेक्टिंग रेज इंटरसेक्ट्स इन रियल, देन द नेचर ऑफ इमेज इज रियल। इफ दे आर इंटरसेक्टिंग टू ईच अदर, इफ दे आर सीम्स टू बी इंटरसेक्टिंग, देन द नेचर ऑफ इमेज इज वर्चुअल। तो इमेज कैसा होगा बेटा? वर्चुअल होगा, है ना। वर्चुअल को हम इमेजिनरी भी बोल सकते हैं। सो किसी बुक में आपको मिलेगी सर इमेजिनरी दिया है तो इमेजिनरी एंड वर्चुअल सेम मीन। ओके, एंड द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज इज इरेक्ट। देखो बेटा, हर की रिसेंट सब केसेस में आपका इमेज जो बन रहा था वो डाउनवर्ड साइड में था, मतलब आपका इमेज जो था वो इन्वर्टेड था, बट यहाँ इमेज कैसा बन रहा है? सेम ओरिएंटेशन, मतलब इरेक्ट इमेज बनेगा। कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, है ना।
तो ये थे आपके डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर एट इंफिनिटी, बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एट एफ एंड between f and p, then we will get the location of image, size of image, nature of image and orientation of image. So ये आपका रे डायग्राम थे किसके, इमेज फॉर्मेशन के कॉनकेव मिरर से. यू ऑल हैव टू ट्राई टू डू बाय योर ऑन. ठीक, सिंपल 2-3 रूल जो मैंने आपको कल पढ़ाए थे उसी की बेसिस पे आपको इमेज बनाना है. अच्छा सर, नेक्स्ट बात करते हैं कि सर इनका यूज क्या है. आप बोलोगे कि सर इनका यूज क्या है, तो बेटा एक्चुअल में क्या हो रहा है, देखो आपको एनालाइज्ड इमेज दे रहा है तो इसका जो जनरल यूज है बेटा वो क्या है, एक पैरेलल बीम दे रहा है तो इट मींस इसका यूज जो है वो मैनुअली यूज किया जाता है, वो ट्रैफिक के हेडलाइट्स में यूज किया जाता है. अगर आपने ट्रैफिक का हेडलाइट देखा हो, ट्रैफिक मतलब इट मींस आपकी बात करें तो ट्रैफिक में व्हीकल, किसी व्हीकल का हेडलाइट देखा हो तो उसमें अगर ये लाइट यहाँ पर अगर आपका लैंप होता है तो उसमें आपने देखा होगा कि पीछे एक पॉलिश्ड एक व्हाइट कलर सा या सिल्वर्ड कलर का एक मिरर होता है. तो वो क्या करता है कि आपका जो लैंप है वो इसके फोकस पे होता है, लैंप जो होता है वो कहां होता है, इसके फोकस पे. अच्छा, लैंप फोकस पे है तो ये क्या करेगा, पैरेलल बीम जनरेट करेगा. क्या करेगा, पैरेलल बीम जनरेट करेगा. और ये पैरेलल बीम जो होती है ये इनफाइनाइट मतलब एक पावरफुल पैरेलल बीम जनरेट करता है. तो इसका जो मोस्ट कॉमन यूज है वो क्या है, व्हीकल का हेडलाइट है. अच्छा, नेक्स्ट बात करूं तो सर्चिंग में जैसे अपने आपको देखा होगा आपने फॉरेस्ट डिपार्टमेंट या फोरेंसिक डिपार्टमेंट वाले टॉर्च लेके चलते हैं तो वो टॉर्च का जो आपका जो मिरर होता है वो भी यही होता है. नेक्स्ट में अगर आपने डेंटिस्ट वगैरह को देखा हो तो डेंटिस्ट जो मिरर यूज करता है, डेंटिस्ट सर्जरी में जो मिरर यूज करता है वो भी कौन सा होता है, आपका कॉनकेव ही होता है. तो उसमें क्या करता है कि वो आपका ऑब्जेक्ट या जो पेशेंट है तो उसकी टीथ को वो एनालाइज करके स्टडी कर सकता है ना. सो दीज आर द बेसिक कॉमन यूजेस ऑफ कॉनकेव मिरर. Now we have to discuss the image formation by convex mirror also. So the next topic is image formation by convex mirror. Image formation by convex mirror. Image formation by convex mirror. सी बेटा, कॉनकेव मिरर में इनर साइड जो है रिफ्लेक्टिंग साइड है, whereas the outer side is polished. And in case of convex, just opposite to a concave, it means the inner side is polished, whereas the outer side is reflecting side. Whereas the outer side is reflecting side. So our topic is image formation by convex mirror. इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर. अब बात करते हैं बेटा आपका जो कॉन्वेक्स मिरर है वो कैसा है. तो आप बोलोगे सर हमारा कॉन्वेक्स मिरर ऐसा है कि उसका इनर साइड जो है वो कैसा है, पॉलिश्ड है, तो वेयर एज द आउटर साइड इज रिफ्लेक्टिंग साइड. अब बात करता हूं तो बेटा इसका तो पोल तो यहाँ कहीं है. आप बात करो सर फोकस तो इधर कहीं रहा होगा, क्योंकि अगर मैं इसको सर्कल को कंप्लीट करना चाहता हूं, क्योंकि ये स्फीयर का पार्ट है, वी नो स्फेरिकल मिरर इज अ पार्ट ऑफ ए स्फीयर. सो अगर इफ आई एम गोइंग टू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर स्पेस, सो इट विल कंप्लीट इन दिस पर्टिकुलर डायरेक्शन. सो सेंटर ऑफ कर्वेचर शुड बी ओवर हियर, इसी डायरेक्शन होगा. अच्छा, हम जो है बेटा क्या कर रहे हैं कि इमेज फॉर्मेशन कर रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट का. इफ वी आर गोइंग टू फॉर्म एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, देन वी हैव टू प्लेस दैट पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट इन फ्रंट ऑफ मिरर. इट मींस मेरे को वो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो कहीं इसके सामने रखना पड़ेगा. इसके सामने रखना पड़ेगा तो इट मींस अपने वो प्रीवियस केस वाले तरह ये डिफरेंट केसेस तो नहीं बनेंगे कि हमने एफ पे रखा, हमने सी पे रखा, हमने बियॉन्ड सी रखा. क्यों? क्योंकि अगर हम मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखेंगे तो फिर मिरर के पीछे ऑब्जेक्ट रखने का कोई मतलब ही नहीं है. अगर आप मिरर में अपना इमेज देखना चाहते हो तो आपको मिरर के सामने होना पड़ेगा, तभी आप कैपेबल होंगे अपना इमेज बनाने में, है ना. तो हम जो ऑब्जेक्ट रखेंगे वो कहां रखेंगे, इसमें सिंपल देयर आर टू केसेस. द वेरी फर्स्ट केस इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी. ऑब्जेक्ट एट इंफिनिटी, अगर इंफिनिटी पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है, सपोज करके इंफिनिटी पे ऑब्जेक्ट रखा है, तो रेज कैसी होगी बेटा, इंसिडेंट रेज पैरेलल होगी. अच्छा, इंसिडेंट रेज पैरेलल होगी तो पैरेलल रेज क्या करती है, फोकस से पास होती है. बट इन केस ऑफ कॉन्वेक्स दे सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस. इट मींस इसको ऐसा लगेगा कि ये जो रेज है वो कहां से आ रही होगी बेटा, फोकस से आ रही होगी. अच्छा, ये वाली रे भी क्या लगेगा कि ये फोकस से, रिफ्लेक्शन के बाद ये फोकस से पास हो रही है. इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस. इट मींस आपका जो रिफ्लेक्टिंग रेज है वो इंटरसेक्ट कर रही है कहां, इमेजिनरी इंटरसेक्शन है कहां पे, फोकस पे. तो आपका इमेज कहां बनेगा बेटा, इस केस में आपका इमेज बनेगा एट फोकस. अच्छा, इमेज क्या रियल में बन रहा है कि इमेजिनरी है, तो इमेजिनरी इमेज है. कैसा है, इमेजिनरी या वर्चुअल इमेज है. कैसा है,
वर्चुअल इमेज। अच्छा, इमेज का साइज क्या है? तो पॉइंट साइज है या हाईली डिमिनिश्ड बोल सकता हूं, पॉइंट साइज। और जो इसका ओरिएंटेशन जो होगा बेटा, इफ आई एम गोइंग टू मूव और फर्दर ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स मिरर, देन वी विल गेट द नेचर ओरिएंटेशन ऑफ इमेज इज इरेक्ट, सो वी कैन से इन दिस पर्टिकुलर केस आल्सो द ओरिएंटेशन ऑफ इमेज इज इरेक्ट। Okay. Now if we are going to move our object towards mirror, towards mirror, so this next case in front of mirror. So the next case, if we are going to move our object towards mirror, so we will get the next case, if object is placed in front of convex mirror, अगर आपका ऑब्जेक्ट जो था वो पहले इनफाइनाइट पे था, अब मैंने इनफाइनाइट से उसको थोड़ा सा मूव करवा दिया। कहाँ मूव करवाया? मैंने उसको थोड़ा सा मूव करवा दिया मिरर के डायरेक्शन में। सो वी विल गेट, अब मिरर के सामने तो आप कहीं भी रखो, उसके कोई वो नहीं है, डिफरेंशिएट नहीं है। सो ये ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पुट करवाया, ये आपका बेटा एफ होगा, फोकस पॉइंट होगा, और ये आपका सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर सी है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, इफ रे इज इंसिडेंट रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस, तो ये फोकस से आफ्टर रिफ्लेक्शन ऐसा इट सीम्स टू बी पासिंग थ्रू फोकस। अच्छा सर, सेकंड ये था कि अगर आपकी जो रे है वो सी से आएगी तो सी से जाएगी, या एफ से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी, है ना। तो अगर मैं सी वाला केस ले लेता हूं बेटा, अगर इंसिडेंट रे जो है वो सी से आएगी, मतलब आपको स्केल यूज करते हुए ड्रॉ करना है कि ये रे जो है वो कहां जानी चाहिए बेटा, सी पे जानी चाहिए। अगर ये सी से आएगी तो ये सी से ही बाउंस बैक हो जाएगी ना। तो ये सी से आ रही थी तो सी से बाउंस हो गई, तो ये ऐसा लग रहा है कि सी से आ रही है। तो आपकी जो दोनों रे है वो कहां इंटरसेक्ट कर रही है? एक रे तो ये सीम्स हो रहा था और ये भी क्या वर्चुअल है, तो आपका इमेज जो बनेगा बेटा वो इस लोकेशन पे बनेगा। इमेज कहां बनेगा बेटा? यहां बनेगा। इमेज बना ना, तो इमेज कहां बनेगा? बिटवीन एफ एंड पी। इमेज जो बनेगा बिटवीन एफ एंड पी, तो यहां से बात करते हैं, तो इमेज जो होगा बेटा वो कहां होगा? बिटवीन एफ एंड पी बात करते हैं। तो इमेज कैसा बन रहा है? तो बेटा डिमिनिश्ड बन रहा है। इमेज वर्चुअल है क्योंकि एक्चुअल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही। एक्चुअल में तो ये रिफ्लेक्टिंग रेज, द वेरी फर्स्ट रिफ्लेक्टिंग रेज इज दिस वन एंड द अनदर वन इज दिस वन, सो दे कांट इंटरसेक्ट इन रियल ना, सो दे आर इंटरसेक्टिंग वर्चुअली, सो इमेज इज वर्चुअल and the size of image is diminished, virtual and erect, sorry. See, in case of concave mirror, we are getting the size of an image is point size, same size, diminished and enlarged, and in that particular case we are getting the image in real or imaginary cases, both cases, in real or imaginary. Whereas in case of convex mirror we will get only imaginary image, diminished image and erect image, and behind the mirror. In that in case of concave mirror we are getting image in front of mirror or behind the mirror, both, but here we are getting image in case of convex mirror behind the mirror. Okay, thank you. You should try to do by your own using scale and pencil and all. In next lecture we will discuss the exact location of image. It means which are the based on mathematics calculations using mirror formula and magnification. Thank you.